Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter the Indian Constitution, and under this chapter we are doing the features of the Indian Constitution. And in the previous class we have discussed three features of Indian Constitution. The first feature is federalism. Federalism is presence of more than one level of government, है ना, and the distribution among these different levels of government is done by the constitution. And we have adopted this federalism because in our country diversity is there. The people belonging to different religious community, belonging to different linguistic community, people belonging to different cultural communities are living together, so we have adopted this federalism. And the second feature which we have discussed in the previous class was parliamentary form of government. And we have seen that under this parliamentary form of government, people are the ultimate authority. The ultimate authority lies in the people, because it is the common people who exercise their right to vote and choose their representatives, and these representatives rule on behalf of the common people. And in our constitution, this universal adult franchise was adopted, which means that every citizen, every adult citizen of India has a right to vote. There is no discrimination between the people on the basis of color, gender, caste, religion, or economic status, or educational status, anything like that. Every adult citizen was given right to vote. Not only right to vote, but the people were also given right to contest elections. So this is one of the most important features of the Indian Constitution. And then we have discussed about separation of power. Separation of power is also adopted in our constitution. The government has three organs: the executive, the legislature, and the judiciary. And the function, the jurisdiction of all these organs are defined by the constitution. No organ of the government can interfere in the jurisdiction of another organs. And in this way we see that all these three organs work in such a manner that there is check and balance. One organ of the government checks the other two organs, and in this way the power of all these three organs are balanced. Okay, so we have discussed up to this, and today we will discuss another feature of one of the most important feature of the Indian Constitution, and that is fundamental rights. Fundamental rights, as we see, इसमें जो टर्म यूज किया गया फंडामेंटल. फंडामेंटल का मतलब कुछ ऐसे राइट्स जिनके बिना वी कैन नॉट सर्वाइव एज अ ह्यूमन बीइंग. हमें कुछ ऐसे राइट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ ऐसी हमारे नीड्स होते हैं जिसके जो अगर हमें वो राइट्स नहीं मिलती हैं, वो हमारे लिए इतनी बेसिक राइट्स हैं. दीज आर द बेसिक राइट्स विदाउट विच वी कैन नॉट लिव द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. ठीक है, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, बिकॉज जब हम कॉलोनियल रूल में थे, व्हेन वी वर अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, वी वर एक्सप्लॉइटेड, वी वर इल ट्रीटेड, वी वर नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ राइट. People were not free, people were not treated in an equal manner. So what happened that during this colonial rule, people, it was the demand of the people that they must be given some written rights in the free India. And our nationalist leaders were also of the opinion that
the citizens, the people in the country must be given some rights, and these rights should be written in the constitution itself. सिर्फ राइट्स देने का मतलब है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टेड हो, क्योंकि अगर राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्टेड नहीं है तो फिर उन राइट्स का कोई मतलब नहीं रह जाता है. तो आर नेशनलिस्ट लीडर्स वर ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज़ वेरी मच important, it is very much urgently required that these rights must be written, must be listed in the constitution, and these rights would ensure that the government will not misuse its power, है ना. As we have seen in the previous discussion, we have discussed about it कि how the government can misuse its power, but these fundamental rights act as restrictions on the powers of the government, है ना. So keeping these in view, our constitution makers given this fundamental rights to the people. The government, the power of the government should not be absolute. There must be some limitations on the powers of the government, and these limitations are put by the fundamental rights, and the government should not use its power arbitrarily, है ना. arbitrarily मतलब without using any rules, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें कुछ राइट्स देता है. जो राइट्स हमें स्टेट के अगेंस्ट मिला हुआ है, जो राइट्स हमें गवर्नमेंट के अगेंस्ट मिला हुआ है, स्टेट के अगेंस्ट मिला हुआ है, साथ ही साथ जो ऑर्गेनाइजेशंस है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं, इन सब के अगेंस्ट मिला हुआ है. मतलब ये है कि हमें जो फंडामेंटल राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, उन फंडामेंटल राइट्स को हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है. ना तो कोई दूसरा इंडिविजुअल, ना ही कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नहीं स्टेट, कोई भी हमसे इस राइट्स को नहीं छीन सकता है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि हाउ मेनी राइट्स वी हैव, कितने राइट्स हमें दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में. तो अगर हम ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो हमारे पास 6 राइट्स जो है 7 राइट्स हुआ करते थे. ठीक है. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 राइट्स थे, लेकिन बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एक राइट जो थी हमारी राइट टू प्रॉपर्टी, इसको लेकर के क्या हुआ, कुछ कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गए. ठीक है. राइट टू प्रॉपर्टी जो कि पहले हमारा फंडामेंटल राइट था, लेकिन बाद में इसको लेकर के कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया और फिर ये राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से निकाल दिया गया. तो अब ये राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है. तो आज के समय में अगर हम देखें तो हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. ठीक है. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 था, इस राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया और अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. ठीक है. अब ये 6 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं? तो जो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट हमारा है, दैट इज राइट टू इक्वालिटी. ओके. पहला हमारा है राइट टू इक्वलिटी. राइट टू इक्वलिटी का जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइट है हमारे लिए. इसका ये मतलब है कि ऑल द पीपल इन इंडिया आर इक्वल. देयर शुड नॉट बी any discrimination on the basis of caste, on the basis of religion, on the basis of gender, on the basis of color of the skin, okay, on the basis of place of birth. There should not be any kind of discrimination. All the people of India should be treated in an equal manner.
दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट राइट, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी क्या है, अगर आप कहीं पर भी सपोज इन फैमिली इटसेल्फ या फिर आप अपने क्लास में, अपने नेबरहुड में, कहीं पर भी आपको अगर ये लगता है कि हमारे साथ हमारे ही जैसे जो और लोग हैं उनके साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है वैसा ट्रीटमेंट हमें नहीं मिल रहा है, हमारे साथ इल ट्रीटमेंट हो रहा है, तो क्या होता है, हमें ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। हमारी ये बिल्कुल हम चाहते हैं हमेशा, और यही सवाल उठता है हमारे मन में कि जब हम सब बराबर हैं, कहीं भी सपोज आप अपनी क्लास में हो, आपके क्लासमेट्स हैं, आप सारे क्लासमेट्स एक जैसे हैं, तो फिर अगर कहीं से भी मान लो आपके टीचर किसी भी तरह का पार्शियलिटी कर रहे हैं कि कुछ एक बच्चों के साथ ज़्यादा अच्छा बिहेवियर हो रहा है, बाकी बच्चों के साथ इल ट्रीटमेंट हो रहा है, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, है ना। आपके मन में यही सवाल उठेगा कि ये अलग अलग ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है, जबकि हम सब तो बराबर हैं, हम सब तो एक ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम सब एक ही तरह से सारा कुछ करते हैं, तो फिर ये इल ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है। हाँ, अगर कुछ बच्चे जैसे अगर पढ़ने में अच्छे हैं तो उनका रैंक अच्छा आएगा, टीचर उनके लिए अच्छी बातें कहेंगे, वो अलग चीज़ है, बट जहाँ पर हम सब एक जैसे हैं तो हम सब के साथ ट्रीटमेंट भी एक जैसा होना चाहिए, है ना। ये हमारी हमेशा यही हमारी डिज़ायर होती है, हमारी विशेज़ होती हैं। तो इक्वालिटी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि हम यही चाहते हैं कि हम सबके साथ एक जैसा ट्रीटमेंट हो, अलग अलग ट्रीटमेंट ना हो। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको एंश्योर किया कि देयर विल बी इक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो ये है कि ऑल द पीपल ऑफ इंडिया आर इक्वल बिफोर लॉ। इक्वल बिफोर लॉ का मतलब क्या हुआ, जो कानून है, जो लॉ है, वो सबके लिए एक समान है। कोई ये सोचेगा कि हम ऊंचे पोस्ट पे हैं या हम रिच हैं या हमारा बहुत इन्फ्लुएंस है तो हमको उस लॉ को ना मानना पड़े, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज लॉ जो है वो सबके लिए एक समान है ना। ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है। हर किसी को लॉ का इक्वल प्रोटेक्शन मिला हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा लॉ की तरफ से बहुत उनको प्रेफरेंस दिया जा रहा है, उनके लिए कुछ दूसरे नियम हैं, बाकी लोगों के लिए दूसरे, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, इसमें आप ये देखेंगे जैसे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनको कुछ खास प्रोटेक्शन मिला होता है, तो ये बिकॉज ऑफ पोस्ट, है ना। जो भी उस पोस्ट पे आएगा उसको वो फैसिलिटी मिलेगी, क्योंकि वो एक बहुत ही ऊंचा पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, एक पूरी कंट्री की जिम्मेदारी उनके ऊपर है, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ खास इंतजाम किए जाते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं, लेकिन जहाँ पर हम सब बराबर हैं वहाँ पर हम सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। वी आर ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। और इसलिए आप देखोगे जैसे कि जो कोर्ट रूम का जो सीन होता है, अगर आपको थोड़ा भी कुछ टीवी सीरियल्स में आपने ज़रूर देखा होगा, जो कानून की जो मूर्ति होती है उसकी आंखों पे काली पट्टी बंधी होती है ना। तो ये काली पट्टी बंधी होती है और उसके हाथों में क्या होता है, उसके हाथों में तराजू होती है। तो ये काली पट्टी जो बंधी होती है वो इसलिए होती है कि कानून अंधा होता है। कानून ये नहीं देखता है कि जो उसके सामने लोग आ रहे हैं, जो कोई भी अपराधी बनकर आ रहा है, जिस पर कुछ एलिगेशन लगा है या जिसके साथ कुछ बुरा हुआ है, जो भी है, उसको वो देखती नहीं है कि वो रिच है या पुअर है, वो हिंदू है या मुस्लिम है, वो कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर है या कोई आम आदमी है। ये सब चीज़ों से कानून को कोई मतलब नहीं होता है। कानून सिर्फ तराजू लेकर के क्या करती है, एविडेंसेस देखती है, जो सही है वो उसके साथ जाती है, जो गलत है वो उसको पनिश करती है। तो दिस इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, है ना। और इसकी दूसरी चीज़ जो इसमें है कि कानून के सामने सभी बराबर हैं। दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं वो ये है कि नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड
against no citizen can be no citizens can be discriminated against on the basis of their religion, caste or gender. ओके इसका यही मतलब है कि जो भी लोग हैं इंडिया में रहने वाले, उनके बीच में किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे कोई डिफरेंस नहीं होगा, है ना। एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। जैसे जो भी पब्लिक प्लेस है, लाइक टेम्पल है, होटल्स हैं, स्कूल्स हैं, शॉप्स हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, इन पब्लिक प्लेसेस में किसी को भी आने जाने से रोका नहीं जा सकता। इसका यही मतलब है, ये जो हम कह रहे हैं कि नो सिटीजन्स कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और जेंडर, इट मीन्स दैट, ठीक है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम रही है, यू ऑल नो अबाउट इट, यू आर इन क्लास 8, क्लास 6 से हम इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे यहाँ जो शूद्रास थे उनके साथ इल ट्रीटमेंट होता था। दे वर कंसिडर्ड एज अनटचेबल्स, दे वर नॉट गिवन परमिशन टू एंटर द पब्लिक प्लेसेस लाइक टेम्पल्स और स्कूल्स, है ना। तो ये चीज़, इसको बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया कि किसी भी जो इंडिया के लोग हैं उनको किसी भी पब्लिक प्लेस में आने जाने से रोका नहीं जाएगा। पब्लिक प्लेस में हर कोई आना जाना कर सकता है, कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे या जेंडर के बेसिस पे उसको रोका नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है कि जो छुआछूत का जो सिस्टम था उसको भी पूरी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ख़त्म कर दिया, ठीक है। अनटचेबिलिटी, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी। अगर किसी भी पब्लिक प्लेस में कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है तो उसके अगेंस्ट हम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे अगेंस्ट कोई हमें कोई अनटचेबल कह रहा है या हमारे साथ अनटचेबिलिटी का ट्रीटमेंट कर रहा है पब्लिक प्लेस में, तो हम उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं। तो अनटचेबिलिटी को एंड कर दिया गया है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ हम देखेंगे कि हमारी कंट्री में हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि देयर विल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और जेंडर, लेकिन इसमें आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सरकार तो खुद ही डिस्क्रिमिनेट करती है ना। जब जॉब्स पे कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन दी जाती है, या फिर जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए कास्ट के बेसिस पे कम मार्क्स होने पर भी कोई किसी को एडमिशन मिल जाता है, तो ये क्या है, दिस इज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। तो ये क्यों करती है गवर्नमेंट? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है कि देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, बट गवर्नमेंट इटसेल्फ इज डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। लोअर कास्ट, जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है सोसाइटी के, लाइक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड कास्ट, इन सबको जो हमारी गवर्नमेंट है वो प्रायोरिटी देती है। उनको अगर कम मार्क्स भी आते हैं तो भी उनकी जॉब्स में रिक्रूटमेंट हो जाती है, उनको कम मार्क्स आते हैं तो भी उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिल जाता है। क्यों? ये फिर इस तरह का भेदभाव, इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन गवर्नमेंट क्यों करती है? देयर इज रीजन बिहाइंड इट। गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग एनीथिंग विच इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है
उसका पर्पस निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन का जो रीजन है वो पॉजिटिव हो सकता है, पॉजिटिव बेसिस पे हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। द गवर्नमेंट, द स्टेट कैन डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव रीजन, ठीक है। जब सो कॉल्ड लोअर कास्ट को रिजर्वेशन दिया जाता है जॉब में, तो क्यों रिजर्वेशन दिया जाता है? इसलिए नहीं दिया जाता है ताकि अपर कास्ट के लोगों के अगेंस्ट नहीं दिया जा रहा है। ये जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो अपर कास्ट के लोगों के अगेंस्ट नहीं दिया जा रहा है, बल्कि जो लोअर कास्ट, सो कॉल्ड लोअर कास्ट हैं सोसाइटी के, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए दिया जा रहा है। क्योंकि पीछे के समय अगर हम देखें, जो कि हम लोगों ने कई बार सब चीज़ों को डिस्कस किया है, तो अगर हम प्री इंडिपेंडेंस सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी को देखते हैं, प्री इंडिपेंडेंट इंडियन सोसाइटी को देखते हैं, तो वहाँ पर जो शूद्रास थे उनके साथ बहुत इल ट्रीटमेंट होता था। उनको स्कूल तक में एंट्री नहीं मिलती थी, वो पढ़ लिख नहीं पाते थे, तो उनका जो डेवलपमेंट था वो पूरी तरह से रुक गया, वो उनका कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं पाया और वो सोसाइटी में बहुत नीचे चले गए। तो अब ये जो, इसलिए उनको हम यहाँ पर सोसाइटी जो है उनको लोअर कास्ट कहती है, तो उनको उस नीचे जो वो चले गए हैं बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन विच वॉज डन बाय द पीपल ऑफ अपर कास्ट। तो अब उस जगह से उनको ऊपर लाना है ना, उनको ऊपर खींचना है। कैसे वो ऊपर आएंगे? उनको ऊपर आने के लिए एक हेल्पिंग हैंड चाहिए। ये हेल्पिंग हैंड क्या है? दिस हेल्पिंग हैंड इज दैट रिजर्वेशन विच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट। तो ये रिजर्वेशन देने के पीछे रीजन क्या है? पॉजिटिव रीजन है। रीजन ये नहीं है कि अपर कास्ट के लोगों के अगेंस्ट ये रिजर्वेशन दिया जा रहा है, बल्कि ये रिजर्वेशन लोअर कास्ट के लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको ऊपर उठाने के लिए दिया जा रहा है, पॉजिटिव पर्पस से दिया जा रहा है। और इसलिए ये जो रिजर्वेशन का जो काम गवर्नमेंट करती है, जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, दैट इज नॉट अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी विच इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, हमें राइट टू इक्वालिटी के अंदर ये 3 चीज़ें आपको मेन पढ़ना है, दैट all are equal before law, no citizen can be discriminated against on the basis of their religion, caste or gender, and end of untouchability, ठीक है। And now we see the another fundamental right, and that is right to freedom, ठीक है। We have seen कि right to equality is very important for the development of the personality of an individual. In the similar way, right to freedom is also very much important for the development of the personality of an individual. We cannot develop our personality, we cannot develop the potential which we have in the absence of freedom. अगर हमको freedom नहीं मिलेगा तो बहुत सारे चीज़ें हमारे अंदर हो सकती हैं, बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हो सकती हैं, हमारे अंदर बहुत टैलेंट हो सकता है, लेकिन अगर हमको वो एक फ्री एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा तो वी विल नॉट बी एबल टू डेवलप दैट टैलेंट, और इस तरह से पर्सनालिटी का पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो फ्रीडम हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। बिना फ्रीडम के हम एक ह्यूमन रिस्पेक्टेबल लाइफ, एक डिग्निफाइड लाइफ नहीं लीड कर सकते हैं। अगर हमें हर चीज़ पर हर समय रोक लगाई जाए तो क्या होगा? हमारे लिए वो बहुत ही, मतलब अगर हर बात पे आप क्या खा रहे हैं, आप क्या कैसे चल रहे हैं, आप क्या क्या पहन रहे हैं, अगर इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट रेगुलेट करे तो फिर क्या होगा? हमारे लिए बिल्कुल भी जो माहौल होगा उसमें हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए फ्रीडम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है,
ठीक है। अब इस फ्रीडम के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारी दी है, जिसमें कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रीडम है, दैट इज फ्रीडम टू एक्सप्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट, बिकॉज जो कुछ भी हम फील करते हैं हमें उसको एक्सप्रेस करने का राइट होना चाहिए. इफ वी आर नॉट गिवन दिस फ्रीडम टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ, देन वी विल फील सफोकेटेड, है ना. हम अंदर में जो कुछ भी फील कर रहे हैं, अगर हम उसको बोल कर या लिख कर या कुछ ड्राइंग बनाकर, पेंट करके, या डांस के फॉर्म में या म्यूज़िक के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हमें रोक लगाया जाता है उसको एक्सप्रेस करने से, तो फिर हमारे अंदर में क्या होता है, बहुत सफोकेशन होता है. तो ये एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वी मस्ट हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. हम बोल सके, हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें. अब किसी भी तरह से हम एक्सप्रेस करें, चाहे जैसे मैंने अभी बताया डांस के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, म्यूज़िक के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, पेंटिंग ड्राइंग की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना. तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जैसे कि जो हम देखते हैं टीवी में जो डिफरेंट चैनल्स पे पॉलिटिकल लीडर्स आते हैं एंड ओपनली दे से अबाउट द गवर्नमेंट. तो दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. दे हैव दिस फ्रीडम. इट्स नॉट कि दे कांट से एनीथिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट. अगर ऐसा हो कि नहीं, वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कह सकते, तो फिर तो हमारे फ्रीडम का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है ना. तो वो उनको ये अधिकार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, हमें ये अधिकार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि हम अपने व्यूज़ को किसी भी तरह से मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर में, चाहे टेलीविज़न में, हम अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकें. आजकल सोशल मीडिया है जिसपे हम अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं, है ना. तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट टू फ्रीडम. एंड नेक्स्ट वी सी राइट टू फॉर्म एसोसिएशन. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट्स. राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है कि हम किसी भी तरह का एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं. उसमें हमें कोई रोक नहीं लगा सकती है. गवर्नमेंट इस पर हमें किसी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकती है. ठीक है. इसी तरह से एक और हमारा फ्रीडम का राइट है, दैट इज राइट टू मूव फ्रीली. कंट्री में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हम फ्रीली मूव कर सकते हैं, है ना. कहीं भी आने जाने से हमें कोई रोक नहीं लगाया जा सकता है. राइट टू मूव फ्रीली. इसी तरह से एक और राइट है, दैट इज राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. कंट्री के किसी भी पार्ट में हम रह सकते हैं, है ना. कंट्री के किसी भी पार्ट में रहने से हमें कोई रोक नहीं सकता है. ठीक है. राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री. कंट्री के किसी भी पार्ट में हम रह सकते हैं. ठीक है. और इसी तरह से हमें एक और राइट दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, दैट इज़ राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस. कोई भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन या बिजनेस हम कर सकते हैं. गवर्नमेंट हमें इसके लिए किसी भी तरह का हम पे रोक नहीं लगा सकती है. ठीक है. तो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट राइट, राइट टू practice right to practice any profession
occupation, any profession, occupation or business. Okay. So these are our right to freedom, important right to freedom. So this is all for today. Now we will continue our discussion in the next class.